So hello students. So in today's class we will discuss combination of resistor. Combination of resistor. So there are two combination of resistor. Series combination and parallel combination. Series combination and parallel combination. So one by one we will discuss. First one is series combination. Series combination. So for your syllabus you have to consider three resistors connected in series. So consider the resistors. Consider three resistors R1, R2, R3 are connected in series to a battery. So this is the positive terminal and this is the negative terminal of the battery. We know that the current I is flowing through a circuit and current is constant for series circuit. So already हम second chapter में discuss करे थे combination of capacitor series and parallel. तो जब कनेक्शन सीरीज रहता है तो करंट क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है और वेरी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो और इसके अक्रॉस में कंसीडर करो वोल्टेज है V1 और इसके अक्रॉस में वोल्टेज है V2 और इसके अक्रॉस में वोल्टेज है V3 आल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. So V1 is the potential difference, V2 is the V1 is the potential difference across R1, V2 is the potential difference across R2, V3 is the potential difference across R3. So this is the equivalent circuit. RS resistance across series and V is the potential difference across R. V is the potential difference across. So ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया. So बोलते हैं series connection और series combination. So what is mean by series combination? A connection in which resistor or any devices are connected end to end. So in this case we are considering a resistance. So that's why in this case series definition is a series connection is the one in which the connection are end to end such that connection are end to end such that it follows 2 points. First one is voltage across, or we can say that current is constant across resistance. फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है कनेक्शन सीरीज है एंड टू एंड कनेक्टेड रहता है और करंट पूरे सर्किट में क्या रहता है कांस्टेंट रहता है. नेक्स्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस is the sum of individual potential difference across each resistor. Total potential difference is the sum of across
ईच रेजिस्टर। हाँ, सो ये दो कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो कनेक्शन क्या है, सीरीज। तो हमारे को डायग्राम देखने के बाद इजीली मालूम हो जा रहा है। बट इसका डेफिनेशन क्या है सीरीज कनेक्शन के लिए, कनेक्शन क्या रहना, एंड टू एंड रहना, और इसमें करंट कांस्टेंट रहना, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। सो दिस कनेक्शन इज नोन एज series connection. So we have to find out the value of effective resistance, RS। RS की वैल्यू निकालना है ना, ये कॉम्बिनेशन में इसकी वैल्यू निकलेगी। So this is known as equivalent circuit। Equivalent circuit means the circuit will create same effect as this circuit। ये इसका same effect है। Suppose ये R1 है 100 ओम, R2 है 200 ओम, R3 है 300। टोटल कितना हो गया 600 ओम। 600 ओम होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 600। सो RS ये R1 था ना, ये R1 R2 R3, ये जितना अफेक्ट क्रिएट करता RS अलोन उतना अफेक्ट क्रिएट करता 600। सो RS अलोन क्रिएट सेम अफेक्ट। सो इसको हम इसलिए इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं, जितने कॉम्बिनेशन में अफेक्ट क्रिएट करें ये अलोन सर्किट उतना अफेक्ट क्रिएट करता है, इसलिए इसको effective resistance। So we have to find out the value of effective resistance। तो effective resistance की वैल्यू फाइंड आउट करो। So we know that the potential difference V is equal to sum of individual potentials होता according to superposition principle। total potential is equal to sum of individual potential across each resistor। So V is equal to V1 plus V2 plus V3। So take it as equation number 1 ले लो इसको। So by Ohm's law, Ohm's law क्या है, V is equal to आया, V is equal to आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि V1 की वैल्यू निकालना, तो ये होता है V by R और V by I ले लो, सॉरी V by R ले लो इक्वल टू I। तो क्योंकि करंट तो कांस्टेंट है सर्किट में इसलिए चेंज नहीं होता, पोटेंशियल क्या हो रहा है वेरी हो रहा है इसके अक्रॉस आ रहा है। सो V इसमें डायरेक्टली वैल्यू डायरेक्टली, तो V इज इक्वल टू आया, तो ये V1 होने की वजह से आ रहा है, V1 इज इक्वल टू IR1। Similarly, we can write for V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR। Now substitute the value of V1, V2, V3 in equation 1. We get so V is equal to how much? I R1 plus I R2 plus I R3। करंट को नहीं लिखना है यहाँ पे I1 I2 I3 क्योंकि सीरीज में करंट क्या है कांस्टेंट है, वेरी कौन हो रहा है पोटेंशियल, इसलिए R1 के अक्रॉस में V1, R2 के अक्रॉस में V2, R3 के अक्रॉस में V3। कॉमन ले लो, इसमें कॉमन क्या आता है करंट I, व्हाट रिमेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस दिस इक्विवेलेंट सर्किट। इसके अक्रॉस में देखो क्योंकि ये बैटरी पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट I फ्लो कर रहा है। तो अगर हम इसके अक्रॉस में देखें वोल्टेज अक्रॉस अफेक्टिव सर्किट और अफेक्टिव रेजिस्टर भी वोल्टेज अक्रॉस अफेक्टिव सर्किट। ओम्स लॉ से अप्लाई करो, V इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है V है, वोल्टेज कितना है V इज इक्वल टू करंट कांस्टेंट है R, क्या है RS, R क्या है RS। RS रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस अफेक्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस अक्रॉस अफेक्टिव सर्किट। तो यहाँ पे भी हम ओम्स लॉ अप्लाई करें तो V इज इक्वल टू RS हो गया। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे देखो दोनों का LHS सेम है, LHS क्या दोनों का सेम है। नाउ वी कैन कंपेयरिंग 2 and 3 we get दोनों कंपेयर करो, LHS सेम है, ये LHS में लिख लो I RS इक्वल टू I into
R1 plus R2 plus R3 I get cancel. RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So this is the effective resistance connected in series. अगर रेजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में, अगर 3 है रेजिस्टर हमारे पास, तो R1 plus R2 plus R3, अगर 2 है R1 plus R2, अगर 4 है यानी 4 है R1 plus R2 plus R3 plus R1. So for n number of resistors, for n number of resistors, we can highlight. So RS, that is resistance in series, is equal to R1 plus R2 plus R3 plus so on up to Rn. So this is for n number of resistors. So इससे कंक्लूजन ये निकला, अगर हम लो रेजिस्टेंस ले, लो रेजिस्टर वैल्यू से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, लो रेजिस्टर वैल्यू, बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टर वैल्यू वी कैन प्रोड्यूस हाई रेजिस्टेंस. अगर हमारे पास लो रेजिस्टर है, हमको हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना है, तो उसको सीरीज में कनेक्ट करना है. सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर दिए तो लो रेजिस्टर वैल्यू से हम हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं. सर्किट में अगर हमको हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना है और हमारे पास क्या है, लो रेजिस्टर, तो उसको हम सीरीज में कनेक्ट करके इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये होगा हमारा सीरीज कनेक्शन. नेक्स्ट ले लो पैरेलल कॉम्बिनेशन. Parallel combination means we have to connect between common terminal and common point. Consider 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel. तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया. पैरेलल कनेक्शन मीन्स यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे रहता है वोल्टेज कांस्टेंट. वो वोल्टेज हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम वो वोल्टेज यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. Two ends of the conductor or two ends of the circuit is known as potential. तो हम कहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों से एग्रीमेंट ड्रॉ करें पोटेंशियल. तो ये पैरेलल रहने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, बट करंट क्या होता है यहाँ पे वेरी होता है. तो यहाँ पे हम हाई करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन का, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. तो यहाँ से करंट आ गया हमारा. जैसे ये नोड है, यहाँ पे क्या है, करंट डिवाइड होता है. कनेक्शन कंफ्यूज हो जाता है. कॉमन टर्मिनल पे लेते हैं. तो यहाँ पे आया करंट डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया यहाँ पे. हाँ, तो ये ले लो I1 ले लो R1 के क्रॉस में, I2 ले लो R2 के, I3 ले लो R3 के क्रॉस. तो ये हमारा करंट फ्लो कर सर्किट. तो यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन. तो पैरेलल कनेक्शन इज द कनेक्टेड बिटवीन कनेक्शन in between common point
point such that तो यहाँ पे देखो पैरेलल कनेक्शन कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। कनेक्शन क्या है, कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, सच दैट वोल्टेज इज कांस्टेंट, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट अक्रॉस द रेजिस्टर। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। नाउ व्हाट इज वेरिंग, द टोटल करंट, द टोटल करंट I is the sum of individual currents, that is I across each resistor, across each resistor। तो यहाँ पे अगर कनेक्शन पैरेलल है तो दो कंडीशन है ना, उसमें एक कंडीशन वो ऑटोमेटिकली रहती है, दो कंडीशन। फर्स्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट अक्रॉस द कनेक्शन, देन करंट, टोटल करंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, टोटल करंट इज द सम ऑफ individual current। Now we have to find out the value of effective resistance, effective resistance। तो हाई रेजिस्टेंस लेने से पहले ड्रॉ कर लो इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट सेम आता है, सिंगल रेजिस्टर कनेक्टेड बाय बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ पे करंट आई फ्लो करता है और पोटेंशियल है यहाँ पे पोटेंशियल भी, और ये होगा आर पी, रेजिस्टेंस आर पी, रेजिस्टेंस अक्रॉस पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टेंस अक्रॉस पैरेलल connection। Now by using Ohm's law, V is equal to IR, V is equal to IR is the Ohm's law। So we know that total current in a circuit I is equal to sum of individual current, that is I1 plus I2 plus I3। total current I is equal to sum of individual currents I1 plus I2 plus I3। by using Ohm's law we can substitute the values, that is I is equal to cross multiply this we get V by R। तो ये अगर I1 है पोटेंशियल का कांस्टेंट है, ये V by R1, V by R, तो ये केस में पोटेंशियल कांस्टेंट है। नेक्स्ट ले लो I2 is equal to V by R2। नेक्स्ट ले लो I3 is equal to V by R। हो गया, इसको इक्वेशन 1 ले लो, substitute the value of I1, I2, I3 in equation 1, we get I is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। take 3 common, we get V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। take it as equation number 2। now we have to find out the current across effective resistor। so current across effective circuit, current across effective circuit I is equal to V by R। Tata I is equal to V by RB for using Ohm's law। Ohm's law use करते हैं, take it as equation number 2। now comparing 2 and 3 we get, comparing equation 2 and 3 we get V by RP is equal to V into 1 by R1
plus 1 by R2 plus 1 by R3. So B and B get cancelled. 1 by R3 equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R1. So this is the three resistors connected in parallel. So reciprocal of the effective resistance is equal to sum of reciprocal of individual resistance. So if you want to write for n number of resistors, we can add it plus 1 to n by Rn for n number of resistors connected in parallel. For n number of resistors connected in parallel. तो ये कनेक्शन हम क्या कर सकते हैं? ये कनेक्शन से हम हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को लो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसा कि सीरीज में क्या था, लो रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहे थे जिसकी वजह से हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा था. और ये केस में क्या है, हाई रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो लो रेजिस्टेंस में, अगर हमें लो रेजिस्टेंस होना है सर्किट में, हमारे पास रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू वेरी हाई है, ज़्यादा आरसी है, उसकी वैल्यू कम करना है तो उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, उसकी वैल्यू ज़्यादा करना है तो उसको सीरीज में कनेक्ट कर दो. तो दिस इज द सिंपल कंक्लूजन ऑफ combination of series and parallel connection and end of today's class.